যোগী জি স্বাগতম, যোগী জি স্বাগতম, যোগী জি স্বাগতম। আমাদের সম্মানীয় 94 বাগদার মনোনীত ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সোমা ঠাকুর, ওনাকে হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে সম্মানিত করলেন। এবার বক্তব্য রাখবেন আমাদের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয় সভাপতি বিকাশ ঘোষ মহাশয়। নমস্কার। আজকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার 94 বাগদা বিধানসভায় যে সুমামা ঠাকুরের সমর্থনে যে আজ জনসভা, সেই জনসভায় উপবিষ্ট আছেন আমাদের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, হিন্দু সম্রাট যোগী বাবা, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের এই লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী এবং অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি সম্মানীয় শান্তনু ঠাকুর মহাশয়, এবং উপস্থিত আছেন এই বাগদা বিধানসভার প্রার্থী সুমামা ঠাকুর এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট কার্যকর্তা, এবং আপনারা সকলকে আমি অনুরোধ করব আমরা 29 তারিখে সকাল সকাল যাব এবং পদ্ম ফুলে বোতামটা চেপে ভোট দেব। নমস্কার। ধন্যবাদ সম্মানীয় বিকাশ ঘোষ মহাশয়কে। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসেন আপনাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী সম্মানীয় সোমা ঠাকুর মহোদয়া। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আজ বাগদা বিধানসভার পূর্ণভূমিতে আজকের এই জনসভায় আপনার আমার সকলের প্রিয় উত্তরপ্রদেশের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি উপস্থিত আছেন, বনগাঁ লোকসভার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তনু ঠাকুর মহাশয় আছেন, বনগাঁ জেলার সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয় সভাপতি বিকাশ ঘোষ সহ অন্যান্য সকল নেতৃত্ববৃন্দ এবং বাগদা বিধানসভার অগণিত মানুষ যারা আজকে এই আমাদের সকলের প্রিয় যোগীজির মূল্যবান বক্তব্য শুনবেন। সত্যি আজকে বাগদার পুণ্যভূমি ধন্য হলো। আজকে বাংলার এই বাগদার মাটি আজকে প্রমাণিত করে দিচ্ছে যে আগামী 29-এ যে ভোট, সেই ভোটে এই বাগদা থেকে বিপুল পরিমাণের জয়যুক্ত হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলায় যে নতুন সরকার গঠন করবে তার হাতে একটা উপহার স্বরূপ তুলে দিচ্ছে। আমরা জানি অনেকক্ষণ ধরে আপনারা বসে আছেন, অনেক কষ্ট করছেন, কিন্তু একটা কথা বলবো, আপনাদের এই কষ্টের ফল আগামী 4 মে দেখতে পাবেন। আমি সোমা ঠাকুর আজকে যদি এই বাগদা বিধানসভা থেকে জিতি, আমি জিতবো না, জিতবে পদ্ম ফুল। আর পদ্ম ফুল জিতলে আপনারা সুরক্ষিত থাকবেন এবং রাতের অন্ধকারে আপনার সন্তানরা যখন বাইরে যাবে সেই মা বাবারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে। কেননা বর্তমানে জানেন পশ্চিমবাংলায় যে পরিস্থিতি, কোনো সুশাসন নেই, কোনো সরকারের কোনো যে সমস্ত সমস্যা পশ্চিমবাংলায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে আজকে বিভিন্নভাবে যুবকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, চাকরি দিচ্ছে না, বিভিন্নভাবে আমাদেরকে পিছিয়ে রেখেছে। আজকে আমরা যে জন্ম নেবে যে বাচ্চাটা, তার
তার মাথার উপরেও 70,000 টাকা ঋণের বোঝা। আমরা এই সরকারকে চাই না, আমরা এই সরকারকে চাই না। তাই গর্জে উঠুন এবং আগামী চৌঠামে পশ্চিম বাংলায় গেরুয়া গেরুময় হবে এই বলে আমাকে সকলে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করুন। এই বলে সকলকে সম্মান জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারম, ভারত মাতা কি জয়। সুবক্তা সোমা ঠাকুরকে ধন্যবাদ। এবার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বনগাঁর জনপ্রিয় সাংসদ শান্তনু ঠাকুর মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার। আজকে বাগদায় নির্বাচনী সভায় উপস্থিত আমাদের হিন্দু সম্রাট তথা উত্তরপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মহাশয়, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে ক্যান্ডিডেট সোমা ঠাকুর, আমাদের বিকাশ ঘোষ জেলার সভাপতি, সুরেশ রানাজি, সুরেশ আবস্তিজি এবং সম্মানিত মঞ্চ সহ আমার সম্মুখে হাজার হাজার ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীবৃন্দ, মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্তা সকলকে আমার গৌরী অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আমরা আজকের ভিড়ে এটা আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন, আগামী 29 তারিখে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্ম ফুলের বোতামে যে পরিমাণে চাপ পড়বে তাতে বোতাম খারাপ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা আজকের ভিড়ে প্রমাণ করে দিয়েছে। তাই বলবো, আসুন 4 মে আমরা 29 এপ্রিল আমরা 5 নম্বর বোতামে চাপ দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিকে 4 মে জয়যুক্ত করিয়ে আমরা বাগদা বিধানসভা থেকে আমাদের ক্যান্ডিডেট সোমা ঠাকুরকে বিধানসভায় পাঠাবো। আপনাদের এই অতিরিক্ত গরমে এবং এত বেশি আর্দ্রতা তা সত্ত্বেও আপনারা সমস্ত গরম উপেক্ষা করে আজকে এই সভামঞ্চে কাতারে কাতারে মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের উপস্থিতিকে, কেননা এত গরম সত্ত্বেও সব উপেক্ষা করে আপনারা এসছেন আজকে মাননীয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজিকে দেখতে। আমি আমার বক্তব্যকে বাড়াবো না। আমি চাই যে আগামীতে বাংলায় সোনার বাংলা তৈরি করতে, বাংলায় ক্ষমতা এসে আগামী দিনে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে যাক। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে নমস্কার, জয় হিন্দ। ধন্যবাদ সম্মানীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর মহাশয়কে। এবার আপনাদের দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষিত আমাদের সেই যোগী আদিত্যনাথজি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখতে আসছেন উত্তরপ্রদেশ তথা ভারতবর্ষের হিন্দু সম্রাট সম্মানীয় যোগী আদিত্যনাথজি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। नमः पार्वती पतये हर हर। आपके लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय शांतनु ठाकुर जी सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है श्रीमती सोमा ठाकुर को। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सोमा ठाकुर जी, जिलाध्यक्ष विकास घोष जी, जोनल इंचार्ज और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, त्रिपुरा के विधायक श्री भगवान दास जी, जिला सचिव श्री मौलोनी मंडल जी,
पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमृतलाल विश्वास जी, अतीन राय जी, सुरेश अवस्थी जी, श्रीमती दीपाली विश्वास जी, प्रणव पाल जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण सुमन अधिकारी जी, नेताई विश्वास जी, श्याम सुंदर घोष जी, दिवाकर तरफदर जी, श्रीमती गीतू सरकार जी, श्रीमती रूपा हल्दर जी, श्रीमती सामीर विश्वास जी, लक्ष्मण घोष जी, सौरभ ग्याली जी, श्रीमती अर्चना मंजुमदार जी, भारी संख्या में बगदा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित बगदा के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए यहां के दक्षिणेश्वर काली मंदिर, नेहाटी बोरो काली मंदिर, बसीघाट दक्षिण काली मंदिर, बारानगर रामकृष्ण आदेश का पहला मठ, यानी इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने भारत की आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण के साथ ही बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक जितेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा एक बाघा जतिन, हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, इस बात का उद्घोष करने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में, नॉलेज कैपिटल के रूप में बंगाल जाना जाता है। याद रखें, बंगाल की धरा की और बंगाल की माटी की जब हम बात करते हैं तो त्याग और बलिदान के रूप में, साहस और स्वाभिमान के रूप में, अध्यात्म और देशभक्ति की धारा के रूप में, कला और साहित्य के रूप में इस पावन धरा का स्मरण हर भारतवासी करता है। याद करिए, भारत की आजादी के लिए जब प्रथम स्वातंत्र समारोह होना था, उसकी चिंगारी भी बंगाल की धरती की बैरकपुर से ही निकली थी। ये बंगाल की धरा है जिसने स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया था। और ये मैं संजोग मानता हूं, जब देश को आजाद होना था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत को वंदे मातरम का अमर गीत दिया। और मेरा मानना है कि जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब इस बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सिंडिकेट से भी मुक्ति मिलेगी, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा उस आध्यात्मिक धरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया। ऐसी आध्यात्मिक विभूति जहां पे लाड़ी मास है, हरिश्चंद्र ठाकुर, स्वामी प्रणवानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों की पावन धरा बंगाल की धरा रही है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, ये वही पावन धरा है
जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए उद्घोष किया था, भारत के नौजवानों के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहनों और भाइयों, ये पावन धरा जहां खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, जो बंगाल भारत का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान के लिए रोजगार नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागर्दी चरम पर है, न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी 2017 के पहले। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी और अराजकता थी। जैसे उत्तर प्रदेश में उपद्रव होते थे, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यापार और उद्योग चौपट हो रहा था, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी है। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनाई। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश में आज उत्सव है, उत्सव। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर है सब चंगा। अब वहां कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, बेटी की सुरक्षा पे कोई सेंध नहीं लगा सकता, व्यापारी से कोई कटमनी नहीं ले सकता। विकास का पैसा जनता जनार्दन के विकास और वेलफेयर पे खर्च हो रहा है। और अब उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर कोई लाठी और गोली नहीं चलाता है। मैं बंगाल के अंदर देखता हूं, ममता दीदी को जय श्री राम से बड़ी नफरत है। वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती है, दुर्गा पूजा विसर्जन के जुलूस को रोकती है। विकास के नाम पर बंगाल के अंदर लूट मची हुई है। यहां पर सैंड माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल की पहचान के लिए संकट खड़ा कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने इन सब से मुक्ति पाकर के आज उत्तर प्रदेश, जो 2017 के पहले बीमारू राज्य था, आज उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। लेकिन बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने बीमारू राज्य बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब एक्सप्रेसवे बन ही नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे को बनाने वाला बुलडोजर, बहनों और भाइयों, आज के दिन पर वहां के माफियाओं की हड्डी और पसली को भी उस हाईवे के साथ मिलाकर के मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। और यही कहने के लिए आया हूं, अभी 23 अप्रैल को बंगाल के पहले चरण के चुनाव हुए हैं। पहले चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटियां खुलेंगी तो बंगाल के अंदर
सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार आने वाली है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार से बौखला करके टीएमसी के गुंडे किस प्रकार के हमले कर रहे थे आपने देखा होगा। लेकिन चिंता मत करिए, टीएमसी के गुंडे इस बात को जानते हैं कि 4 मई के बाद उनको छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलने वाला है। अभी से वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पंचर बनाने के काम को कहां पे उनको करना है, इसी के लिए अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां से भी ढूंढ निकालेंगे हमलावरों को, तो चिंता की बात नहीं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, यहां पर मतवा समुदाय भारी संख्या में रहता है। बड़ी संख्या में वे लोग भी हैं जो लोग 1947 में और 1971 में भारत में आए थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी नहीं चाहती थी कि इनको भारत की नागरिकता मिले, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को भारत के अंदर नागरिकता देना प्रारंभ करने के लिए इस एक्ट को आगे बढ़ाया था, तब इन दलों ने विरोध किया था। आज मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मतवा समुदाय सम्मान के साथ, गर्व के साथ भारत के अंदर अब आगे बढ़ करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सुरक्षा महसूस कर सकता है। बंगाल चुनाव के दौरान ही 12 अप्रैल को मैंने स्वयं भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो भी हमारे बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, मैंने उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र और जमीन के, लैंड के भी पत्र, प्रमाण पत्र उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में किया है। हमारे यहां 4 जनपद ऐसे हैं जहां पर नमो शूद्र के नाम पर मतवा समुदाय के लोग और बांग्लादेश से विस्थापित तमाम बंगाली परिवार उत्तर प्रदेश की धरती पे भी रहता है, और उन सबको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण आज नागरिकता भी मिल रही है और लैंड के भी पत्र प्राप्त होकर के उन्हें उसका मालिकाना अधिकार दिया जा रहा है। यह कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में सोचा है। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्टों के पास ये सोच नहीं थी, और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा भेजते हैं विकास के लिए, आपके लिए, वेलफेयर के लिए, यहां के गरीबों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां की बहनों और माताओं के लिए, यहां की बेटियों की पढ़ाई के लिए, अन्नदाता किसानों की उपज का दाम उन्हें मिले, इसके लिए यह पैसा अभी टीएमसी के गुंडे खा जा रहे हैं, और टीएमसी के गुंडों से हिसाब किताब बराबर करने के लिए आवश्यक है कि यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बने। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब सुशासन की गारंटी, बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब एक गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, एक कमजोर को, एक दलित को, एक वंचित को उसका अधिकार मिलेगा।
बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, उन्हें स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब भारत माता को मजबूती प्रदान करने का एक आधार मिलेगा। बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगी। बांग्लादेश के अंदर जब आज के दिन पर हिंदुओं का कत्लेआम होता है तो टीएमसी के वोट सिल जाते हैं, एक शब्द उनके मुंह से सहानुभूति के हिंदुओं के पक्ष में नहीं निकलते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, ये वक्त है आपके पास, पहले चरण में भारी पैमाने पे मतदान करके बंगाल के नौजवानों ने, यहां की माताओं ने ये साबित किया है कि अब बंगाल के अंधकार को समाप्त करना है। बंगाल की पहचान के लिए संकट बने टीएमसी मुक्त बंगाल का निर्माण करना है। और इसके लिए जो ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम ममता दीदी से कहते हैं हम खेला नहीं हो बे, अब तो खेला शेष उन्नयन शुरू। ममता दीदी, अब खेला शेष, उन्नयन शुरू बंगाल के अंदर होगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने योग्य प्रत्याशी के रूप में यहां पर श्रीमती सोमा ठाकुर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, आप सभी से मेरी अपील होगी, श्रीमती सोमा ठाकुर को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद दोनों हाथ से दिया जाता है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं कहूंगा यहां से आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, दोनों हाथ उठा करके इतनी आवाज से बोलिए कि ममता दीदी के कानों तक आवाज पहुंच जाए। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे होठबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। मेरे साथ बोलेंगे ना? ओंदोकार, 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 सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। और अंत में आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। इतनी जोर से बोलिए कि बाकी सभी विधानसभाओं तक आपकी आवाज पहुंच जाए। पहुंचाने को तैयार है ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।